नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। एनसीसी कैडेट्स ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व मनाया। जी हां, भारत की विभिन्नता में भी एकता है। इसी तर्ज पर भारत सरकार के अधीनस्थ मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन, रक्षा, युवा मामलों, रेल, खेल, सांस्कृतिक, पर्यावरण, पर्यटन ने आपसी तालमेल को कायम रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व मनाने का संकल्प लिया है। इससे पश्चिम बंगाल और असम के एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न राज्यों, मूलतः गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के साथ ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व मनाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कैंप की ऑनलाइन शुरुआत की है। इस कैंप के माध्यम से कैडेट्स को अलग अलग राज्यों के इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक की जानकारी उपलब्ध कराना था। भारत की विभिन्नता में ही एकता है, इसकी जानकारी हर राज्य के हर एनसीसी कैडेट्स तक पहुंचाना था। 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ताकि भारत के कोने कोने के लोग एक दूसरे से जुड़ सके। अखंड भारत की कल्पना तभी की जा सकती है जब सांस्कृतिक जुड़ाव हो। एनसीसी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। स्ट्रक्चर और फ्रेम इज कॉल्ड अ चाला, एक चालार प्रतिमा और द आइडल विद द वन चाला इज द ट्रेडिशनल idol of Ma Durga, and you see in Calcutta there is various themes. And their colorful dance forms, dressing, and the festivals they celebrate, and also know about the mangrove forest like Sundarbans. And debate and quiz competitions were very well organized and conducted. Each and every cadet participated with great enthusiasm, and it was nice to see you all the cadets of West Bengal and Sikkim Directorate. And this the most interesting part was the daily learning session of language of each other, which was conducted on a daily basis. And it would not be possible to conduct such a fruitful session without the coordination and cooperation of our ANOs, our CO Sir Colonel Avesh, and our AO ma'am, Major Manjeet ma'am. And thank you all. मोगा में खोला गया श्री गुरु नानक देव की मोदी खाना। जी हां, एक तरफ कोरोना महामारी के दौरान सिख धर्म के अनुयायियों ने पूरी दुनिया में अपनी सेवा भावना की मिसाल कायम की है, वहीं पंजाब के मोगा शहर में श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर गुरु नानक मोदी खाना की शुरुआत की गई है, जहां पर लोगों को बहुत ही कम दाम में दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं और आसपास के कई गांवों और शहरों के लोग यहां पर दवाइयां लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए पंजाब के मोगा से लखवीर सिंह की रिपोर्ट। जी ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਥੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਂਝ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ है। फास्ट न्यूज़ इंडिया के नाल लखबीर सिंह। नंदोई ने ली विवाहिता की जान। जी हां, यूपी के जनपद कोसांबी थाना करारी ग्राम लक्ष्मणपुर गीता पति नंदलाल के निवासी हैं। दंपति की शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। पति नंदलाल सऊदी अरब में कमाने गए थे। दंपति के 3 बच्चे, 2 लड़की और 1 लड़का है। बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे का समय था। नंद और नंदोई ने पहले विवाहिता को पीटा, फिर जहरीला पदार्थ पिलाकर विवाहिता गीता की जान ले ली, फिर नगदी और गहने लेकर फरार हो गए, जहां बच्चों के बयान देने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए कौसांबी से रवि कुमार की रिपोर्ट। जी माता जी, बताइए क्या हुआ था? हाय भैया का बताऊं, और भैया तो एकदम बेहोश रही, मैं नहीं जानती हूँ। हाय मोर भैया। हाँ, बिट्टी से आके मिलते हैं। बिट्टी बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ? बता दे भैया, रीतक बता दे, जिनता मारा रही लपटियान रही। किनका मारे ने बिटिया, बताओ तो। लीटा मम्मी को मारी नहीं। मम्मी की मारी है? हाँ। और कौन कौन मारा है? फूफा मारे नहीं। फूफा मारे हैं? और को नहीं मारे। अच्छा,
कैसे मारे हैं बताएंगे? बताइए, डरो मत। बता भैया। अच्छा, घूंसा से मारे हैं। और कुछ बताएंगे? अब पैसा को निकाल रहा है भैया? नहीं निकाली, बापा है। बाप ने पैसा कौन निकाला है? दीदी निकाली। रितवा। हाँ। नाम क्या है तुम्हारी दीदी का? पापा दीदी। और फूफा का नाम जानते हो बिटिया? नाम ना कुछ रहा, बिसर गया। पूरा बक्सा उसका ही सब नहीं रहा है माँ। हमारे भैया के करधनी, छागल, मंगल सूत्र सब बनवाए रही मोर। माता जी बताइए, क्या क्या सामान निकाला गया है? साहब मैं देखो नहीं, पैसा रहा, गहना रहा है, छागल, करधनी, पेटी, ककना, सब मेरे बिटिया के मंगल सूत्र सोने के रहला, सोने के रहिया परसाल बनवाई से भैया सब रहा मेरे बिटिया के गाना। 1,20,000 रुपये धरे रहे। हाँ मोर भैया। कितना पैसा कितना था? 60,000 पैसा पर साल 22 में जैसे 35 तो 40,000 के 60,000 काल निकलवा 60,000 और धरे रहे। 60,000 और मेहमान पठाए रहे, मैं नहीं देखा गया। बतावा रही था 60,000 और निकलवा ने 60,000 काल निकलवा। सब मेरे भैया के 40,000 पैसा ले ली काला निकलवाई से। हाँ माता बताइए, ये कैसे खुदाई कैसे हुई है? साहेब भी खोदा रहा, मोर बिटिया मरी परी, मैं वो मुआयु देखा ही सब खोदा रहा। नहीं खोद लीन मोर भैया के जेवरा सब पैसा निकाल लीन। हाय मोर भैया पर्स पर साहेब के बक्सा वक्सा सब खुला सब ताला उघन निटोट। निकाल तू हाय दिन जौनपुर में पौधारोपण का कार्य हुआ संपन्न। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जौनपुर कार्यालय की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के आदेशों पर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में सेक्टर संयोजक मंडल अध्यक्ष के द्वारा सभी बूथों, गांवों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण का कार्य संपन्न किए। और ये कार्यक्रम 6 जुलाई से 11 जुलाई तक चला। इसी क्रम में खुटहन के मंडल अध्यक्ष वंश बहादुर पाल ने बताया कि जनपद में जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने खुटहन मंडल में 80 बूथों पर 800 पेड़ लगाए। पेड़ों में आम, नीम, पीपल, बरगद, सीसम ऐसे पेड़ों को लगाया गया है जो ऑक्सीजन से भरपूर है। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं और पर्यावरण संतुलन में बहुत ही सहायक होते हैं। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, आपके क्षेत्र में जो पौधारोपण किया गया है, क्षेत्र में कितना पौधारोपण किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था? मैं वंश बहादुर पाल, मंडल अध्यक्ष भाजपा खुटहन। हमारे यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर 6 तारीख से 11 तारीख तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला है, जिसमें सभी मंडल के पदाधिकारी व सेक्टर संयोजक जा के हर एक बूथ पे 10 पेड़ 10 वृक्ष लगाए हैं। एक बूथ पे 10 वृक्ष, पूरे मंडल में 800 वृक्ष लगे। हमारा वृक्ष लगाने का उद्देश्य है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस एक संकल्प लिया कि हम जाके अपने बूथों पर, अपने गांव पर, सार्वजनिक स्थल पर वृक्ष लगाएंगे। हम वृक्ष लगाने से हमको मनुष्य के लिए अच्छी हवा मिलेगी,
अच्छा वातावरण रहेगा। अच्छे हमको कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो फलदार हैं, हम मनुष्य के लिए फल देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। हर एक वातावरण शुद्ध रखने के लिए हमारे पार्टी के तरफ से एक कार्यक्रम 6 तारीख से 11 तारीख तक सभी पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में, हर एक बूथ पे, हर एक सेक्टर पे, हर एक मंडल में ये कार्यक्रम चला। यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आवास के नाम पर प्रधान ने मांगे 10,000 रुपए। जी हां, बदायूं विकास क्षेत्र म्याऊ ग्राम पंचायत चकवा में आवासों के नाम पर प्रधान लाभार्थी से मांगते हैं 10,000 रुपए। आपको बताते चले कि ग्राम चकवा निवासी कल्लूराम बेहद गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाल रहा है। कल्लूराम के 4 लड़की तथा 1 लड़का है, सभी बच्चे जवान हैं। बरसात होती है तो घर में पानी भर जाता है, जिसके चलते काफी परेशानी होती है। कल्लूराम ने बताया कि हमने ग्राम प्रधान रछपाल से आवास के लिए कई बार कहा, तो प्रधान ने कहा कि 10,000 पहले दे दो तो आवास मिलेगा। बताया कि सरकारी शौचालय में भी बने, जिसमें एक किस्त 6,000 रुपए की मिली, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। मजदूरी करके अपने पैसे से शौचालय बनवाया है। ऐसे ही कल्लूराम के पड़ोस में रहने वाले भिखारी लाल ने भी ग्राम प्रधान रछपाल पर आरोप लगाया है कि हमें आवास नहीं दिया गया है, पैसे मांगे जाते हैं और शौचालय का पैसा नहीं दिया। एक बार एक किस्त मिली है, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। ऐसे समस्याओं के चलते कल्लूराम और भिखारी लाल ने जिला अधिकारी महोदय बदायूं से आवास दिलवाने की मांग की है। देखिए हजरतपुर से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम कल्लूराम है। कहाँ रहते हो? ग्राम चकवा में। चकवा में। तो ये क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या जो है प्रधान साहब ने कही कि हम हमारो कमरा बनवा दे जी, सरकारी जो है पैसा को इंतजाम हमारो करवा दे। तुम प्रधान आदमी तो उनने जो है कही 10,000 रुपया दो तो कमरा तुम्हारो लेकर कितने मांगे? प्रधान 10,000 रुपये रछपाल ने। कितने मांगे? 10,000 रुपये। 10,000 तुमसे मांगे? हमसे मांगे, हाँ। अच्छा, और उसके बाद में पुरानी लैट्रिन जो है सरकार ने दी, तो गाँव में जो है 12,000 रुपया आए। पहली लैट्रिन हमें जब पहली किस्त मिली तो हमें हुआ ही जो है बैंक में 6,000 रुपया हुआ ले ले। हमने कहा ऐसा करो 50 रुपया हमें दे दो, शायद 4 जने करके किराए फरी खा ले। तो उनने 50 रुपया हमारी टाइम ना दे, उसके कबाद चकवा के ठाकुर माई 12,000 रुपये लैट्रिन को सरकार देती है। सरकार देती है, तो दोबारा से जो मिले हैं वहाँ से जो हमने बनवाई। 6,000 रुपये पूरी अकेले उन्हें ले लिए? अकेले नहीं लिए, उन्हें दिया नहीं। 5 से ईंटें दी। 6,000 रुपये में 5 ईंटें बस, और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तुम्हारा क्या नाम है? सुनीता। ये घर तुम्हारा ही है? हमारा ही है। क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। कोई रहने भाई कोई व्यवस्था नहीं, सब टूटा टाटा करो। पानी जब बरसे तो घर में पानी भर जाते थे। बच्चे 4 बच्चे कहाँ रखे बताओ। अच्छा, तो प्रधान वगैरह नहीं आती हैं देखने? प्रधान देखने आते हैं, फिर कमरा वमरा कोई व्यवस्था नहीं करते। जब वोट लेने को आते हैं, जब बरसात होती है दिक्कत होती है। बरसात होती है, घर में पानी भर जाता है, तो लेटने की जगह नहीं आई, टूट सब पर आते हैं। कितने बच्चे हैं आपका? हमारे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ 1 लड़का है। लड़कियाँ? अच्छा जी, सब सियानी इतनी बड़ी लड़कियाँ हैं, शादी लायक हो गई है। कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, कैसे शादी करें? अपने रहने को खाने को कुछ है नहीं। बहुत 10 बार 50 बार किया, जब आते हैं तब कहते हैं घर चल किया, कोई सुनते नहीं। गरीबों की कोई नहीं सुनते। पैसा कर्जा करी के नहीं दो जाए, कर्जा करी के कैसे दो जाए? 5 रुपया की ब्याज लेके कैसे दो जाए? प्रधान अभी जो दे हमें कमरा मिल दिया। 10,000 रुपया पहले दे, ताकि बाद कमरा मिलो ना मिलो, तो हमारे तो बहना भरे चुके हैं 10,000 रुपया। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।